Alternating current AC. Some definitions of the AC. First is waveform. Waveform क्या होता है? It is a graph of voltage or current with time or angle t. This waveform for voltage or current, it is a graph, time at or angle at x-axis and current on the y-axis. जो ग्राफ मिलेगा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, इस ग्राफ को ही क्या कहेंगे? वेवफॉर्म. इट मे बी वोल्टेज और करंट, करंट और एंगल के बीच में ग्राफ या वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ. दिस ग्राफ 0 to this is pi by 2 90 degree, pi 3 pi by 2 2 pi. Similarly for voltage, the graph between voltage and angle is the waveform 0 to pi by 2 2 pi by 2 0 to 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi. Pi by 2 maximum value, 3 pi by 2 minus maximum value, maximum plus value, maximum minus value is the graph of current and voltage को क्या कहेंगे? वेवफॉर्म. नेक्स्ट डेफिनेशन इज instantaneous value of voltage and current. करंट और वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या कहेंगे हम? इंस्टेंटेनियस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट एनी टाइम. So V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t. So Vm is the peak value, omega t is the angle. I is the peak value of current, omega t is the angle of the wave. This is V is the instantaneous value, I is the instantaneous value of voltage, and this is instantaneous value of current. So instantaneous value of voltage is V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t. Any time value of current, as the current is changing, this is alternating nature. So any particular time, the magnitude, the value of the current depends on the angle, is given by V is equal to Vm sin omega t. इसका वैल्यू किससे देंगे? With the formula V is equal to Vm sin omega t. The voltage value, current का वैल्यू किससे देंगे? I is equal to Im sin omega t. And in these values are instantaneous value. At any time value of current को क्या कहेंगे? Instantaneous value of voltage और current. अभी देखेंगे हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज. एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल. एवरेज वैल्यू को ही कहते हैं हम डीसी वैल्यू. एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. करंट या वोल्टेज का डीसी वैल्यू वी डीसी और वी एवरेज, आई डीसी और आई एवरेज. तो डीसी वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज क्या होता है? फॉर वन साइकिल और हाफ साइकिल इज द एरिया 0 to pi इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय द बेस पाई गेट द वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट. इसमें भी वोल्टेज और करंट. दिस इज द ग्राफ ओमेगा टी वर्सेस वोल्टेज. तो इसका एक साइकिल का प्लस आएगा और दूसरे नेगेटिव साइकिल का माइनस आएगा. तो सम ऑफ द कंप्लीट साइकिल इज 0 है. लेकिन ये क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द वेव बिटवीन द टू लिमिट्स डिवाइडेड बाय द बेस एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट. सो वी एवरेज इज इक्वल टू, वी कैन फाइंड दिस वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to pi V d omega t
डिवाइडेड बाय द बेस पर, हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। V इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t। सो V एवरेज और VDC इज इक्वल टू 0 to pi Vm sin ओमेगा t t ओमेगा t divided by pi, taking Vm common, integration 0 to pi sin omega t with respect to d omega t. So this is equal to V average is equal to Vm by pi, integration of sin is minus cos omega t, V average is equal to V average is equal to VDC is equal to Vm by pi, integration minus cos omega t sin omega t का integration 0 to pi. So this is equal to Vm by pi minus cos pi plus cos 0. Cos pi is equal to minus 1 minus minus plus 1 cos 0 1. This is equal to 2Vm by pi. So VDC is equal to V average is equal to 2Vm by pi. This is the average value. Or for the current, V average is equal to 2Vm pi. Similarly, current का average value 2Im by pi. Similarly, by integrating, the same value will same procedure is allowed, and we will get the value of average current 2Im by pi. So this is the average value of a alternating quantity or alternating voltage and current. Now to find RMS value or effective value or virtual value of the current or voltage. एक्चुअल में RMS वैल्यू क्या होता है? प्रैक्टिकली दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, एंड बाय टेकिंग द रूट मीन बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू गिव द RMS वैल्यू। मीनिंग ऐसा है इसका, RMS वैल्यू का मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, फिर उसका एवरेज ले लेंगे और स्क्वायर रूट ले लिया तो हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम इफेक्टिव वैल्यू भी है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ voltage और current, voltage and current, current और voltage का same value है। This is the mathematical value of the root mean square value. If take the mean and take the square, take the square, then take the mean, then square root of the value, give the mathematical value. Now the practical value of RMS value of the AC current or voltage is the value of current which will flow in a circuit for a constant time or a given time, will give the same heating effect as is given by the DC current in the same time in the same circuit. ये ऐसा करंट है, किसी करंट का वैल्यू है किसी एसी करंट का, जो किसी सर्किट में फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो सेम हीटिंग इफेक्ट देता है जितना कि उसी टाइम में डीसी करंट फ्लो करने पर देता है। जैसा ऐसा मान सकते हैं कि डीसी करंट हम किसी सर्किट में 1 आवर फ्लो करते हैं और वो सर्किट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अब एसी का जो वैल्यू फ्लो करें हम 1 आवर तक ही फ्लो करें, अब इसका कोई अमाउंट होगा, डीसी का करंट का अमाउंट होगा
एनी वैल्यू ऑफ करंट आई करंट फ्लो करते हैं यहाँ पे, जब 5 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं 1 आवर तक और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देता है किसी सर्किट का। अब एसी का जो वैल्यू, कितना वैल्यू आएगा जो 1 आवर तक फ्लो करने में किसी सर्किट में के टेम्परेचर को या किसी वायर को या कंडक्टर को फ्लो करने पे उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगा। दिस इज प्रैक्टिकल। अब इससे ज़्यादा ही होगा या कम होगा वो दे देंगे, लेकिन इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगा, जो सेम हीटिंग इफेक्ट दे इन द सेम वायर इन द सेम टाइम, is known as is given by the DC value of the current. Is that equivalent value to the DC is the RMS value of DC. It must be clear that if you flow a 5 ampere DC current in a wire for 1 hour, for 1 hour flow करते हैं और वो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है, तो एसी का कितना वैल्यू 1 आवर तक फ्लो करे कि वो वायर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, दैट वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ एसी इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ, उसको ही क्या कहेंगे, एसी का आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, दैट वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। एंड मैथमेटिकली वी कैन फाइंड द वैल्यू आई आरएमएस इंटीग्रेशन 0 to 2 pi I d omega t and divided by base I square d omega t divided by base is 2 pi. One complete cycle का base 2 pi होगा. I is the instantaneous value का square लेंगे. Limit for one cycle 0 to 2 pi and then take the under root. Square root ले लेंगे इसका, तो that value gives the RMS value of current. अब ये लिमिट को एक साइकिल हमारा 0 to पाई आता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और 0 to पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल और पाई to 2 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल. सो डिवाइड द लिमिट इनटू 2 पार्ट्स, 0 to पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी प्लस पाई to 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी upon 2 pi, taking the square. Now, substituting I is equal to Im sin omega t. Instantaneous value of current in positive half cycle is plus Im sin omega t. In negative half cycle is minus Im sin omega t. Substituting the value of instantaneous value of current in this part, और इस पार्ट में भी रख देंगे, तो क्या आएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 0 to पाई Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस पाई to 2 पाई माइनस Im साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1/2 pi divided by 1/2 pi. This is equal to IRMS is equal to, take Im square by 2 pi common, Im square by 2 pi. So first limit is 0 to pi sin square omega t d omega t. Second is pi to 2 pi sin square omega t d omega t. As cos 2 omega t, cos 2 omega t is equal to 1 minus 2 sin square omega t. So sin square omega t is equal to 1 minus cos 2 omega t by 2. ये sin square omega t का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 minus cos 2 omega t by 2. This is equal to Im square by 2 pi, taking square root, limit 0 to pi 1 minus cos 2 omega t by 2 d omega t plus pi to 2 pi 1 minus cos 2 omega t by 2 d omega t. This is equal to under root Im square by 4 pi
taking 2 outside, integration 0 to pi 1 d omega t minus 0 to pi cos 2 omega t d omega t plus pi to 2 pi 1 into d omega t minus pi to 2 pi cos 2 omega t d omega t. Now taking इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ये क्या आएगा IRMS इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ Im स्क्वायर बाई 4 पाई है 1 ओमेगा टी लिमिट 0 to pi माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ओमेगा टी 2 ओमेगा टी इक्वल टू sin 2 ओमेगा टी बाई 2 लिमिट 0 to pi प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओमेगा टी लिमिट 0 to pi pi to 2 pi then limit is pi to 2 pi minus integration of cos 2 omega t sin 2 omega t by 2 limit pi to 2 pi. This is equal to Im square by 4 pi Im square upon 4 pi upper limit pi minus 0 minus sin 2 pi minus sin 0 by 2 plus 2 pi minus pi minus sin 4 pi minus sin 2 pi by 2 sin n pi is equal to 0 for n is equal to 0 1 2 3 4 कितने वैल्यू लेंगे इंटीजर sin n pi का 0 तो sin 0 0 sin pi 0 sin 2 pi 0 sin 4 pi 0 तो ये सब वैल्यू 0 देंगे. सो दिस इज इक्वल टू Im स्क्वायर बाई 4 pi माइनस 0 प्लस pi माइनस 0 इज इक्वल टू Im स्क्वायर बाई 4 pi इंटू 2 pi 2 कैंसल. So IRMS is equal to Im by root 2 or 0.707 of Im. So RMS value of the current, AC current, is the 70.7% of the maximum value of the AC. Peak value का 70.7% आता है, जबकि DC हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होता है. तो इसका मतलब यदि हमने हीटिंग इफेक्ट दिया तो AC वैल्यू ज़्यादा लगेगा 30% के करीब, तो 29.3% more than the DC value. So this is the RMS value of current, and similarly RMS value of voltage is equal to 70.7% of peak value. RMS value of voltage भी सिमिलर प्रोसीजर करके हम निकाल सकते हैं. VRMS इक्वल टू VM by root 2 और 0.707 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज. मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वैल्यू का 70.7% होगा, उसको क्या कहेंगे हम RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट. सो दिस वैल्यू इज ऑफ RMS वैल्यू. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइकिल. साइकिल और फ्रीक्वेंसी. साइकिल क्या होता है? एक कंप्लीट साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के जो साइकिल बनता है उसको कंप्लीट साइकिल बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट साइकिल. अब फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड देखेंगे. टाइम पीरियड ऑफ द वेव. टाइम पीरियड ऑफ द वेव. वेव को एक साइकिल कंप्लीट होने में ये जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम. ये किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा या इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. यूनिट इज सेकंड. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा
ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई होता है, तो वहां से टी क्या मिल जाएगा हमें 2 पाई अपॉन ओमेगा। एंगल इज इक्वल टू मैक्सिमम एंगल ऑफ वन साइकिल इज 2 पाई, सो दिस एंगल इज ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। सो टी कितना आ गया यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा या 1 अपॉन एफ इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होती है 1 अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। यूनिट क्या होता है साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। यूनिट जो फ्रीक्वेंसी का होगा वो क्या होगा साइकिल्स पर सेकेंड और हर्ट्ज। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी या ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड साइकिल। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर also important factor जनरली यूज जहाँ पे हमने डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ हमें देखना पड़ता है कि हाउ मेनी एसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द डीसी। सो फॉर्म फैक्टर पता होना चाहिए। सो फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट to average value or DC value of current। RMS VRMS is equal to अभी निकाला हमने VM by root 2। V average is equal to 2VM upon pi। ये वैल्यू फॉर साइन वेव और साइनसॉइडल वेव सभी के लिए अलग होगा। ये साइनसॉइडल वेव के लिए निकाल रहा है, साइन वेव के लिए निकाल रहा है फॉर्म फैक्टर। तो ये क्या होगा VM by root 2 अपॉन 2VM बाई पाई। VM कैंसल, पाई अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू 1.21। इसका वैल्यू कितना था 1.11। दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसॉइडल वेव। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पीक फैक्टर। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का पीक फैक्टर भी पता होना चाहिए और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द वेव। अभी ये ट्रायंगुलर वेव होगा तो अलग आएगा, स्क्वायर वेव होगा तो वो नहीं आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे एवरेज और आरएमएस वैल्यू सेम होते हैं। और यदि ट्रेपेजियन वेव होगा तो अलग आएगा, अलग तरह के वेव्स के लिए अलग अलग होगा। अब पीक फैक्टर को एम्पलीट्यूड फैक्टर भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड फैक्टर, और इसी को बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज क्रेस्ट। इसे केपी से भी डिनोट कर देते हैं। केपी इज इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट टू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। वीएम बाई वीआरएमएस या आईएम बाई आईआरएमएस। अब ये साइनसॉइडल साइन वेव के लिए हम देखेंगे, साइन वेव के लिए वी आर एम एस क्या होगा VM बाई रूट 2। तो के पी इज इक्वल टू VM अपॉन VM बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 1.1 वैल्यू। सो दिस इज पीक फैक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर ऑफ द वेव। अब देखेंगे हम बाकी वैल्यू भी आएंगे। पावर फैक्टर है, पावर्स है अपरेंट पावर और रिलेटिव पावर और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी। एसी में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस आता है। और देखेंगे हम रिएक्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होते हैं, एडमिटेंसेस क्या होते हैं, कंडक्टेंस क्या होते हैं, ससेप्टेंसेस क्या होते हैं एसी सर्किट के। नेक्स्ट डेफिनेशन इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन प्योरली रेजिस्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड, प्योरली कैपेसिटिव लोड, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या नेचर है वोल्टेज और करंट का।
of value state. आपको कुछ नहीं आता